Under Order 6, Rule 17 of CPC, the commencement of trial takes place when issues are framed, when affidavits in evidence are filed, when affidavits in evidence are tendered by the witnesses, and option D, once cross examination begins. कल प्लस की क्लास, हाँ प्लस की क्लास है, सुबह शाम दोनों टाइम में प्लस की क्लास। 100 से कम है, 50 से ज्यादा है क्वेश्चन। 100 से कम है, 50 से ज्यादा है। मैंने क्या कर दिया, ठीक है पोल, बातों बातों में कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा ओजस, तो मुझे लग रहा है तुम मेरी साथ वाली सीट पे बैठे थे, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम साथ वाली सीट पे तुम ही बैठे थे। पोल नहीं आया? गुड इवनिंग लर्नर, लर्निंग सॉरी, नॉट लर्नर। जिसके पास पोल नहीं आया, इंटरनेट अपना चेक करवाएं या अच्छा इंटरनेट लगवाएं घर पे। गौरांग उमंग सोनल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Fraternity means a sense of common brotherhood to all Indians and is the principle which gives unity and solidarity to social life. It was said by Dr. Rajendra Prasad, Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, C. Rajgopalachari. बताइए राइट आंसर क्या होगा? शिल्पी, श्रेष्ठ एंड रूपी, गुड। Shilpi, Trace, Ruby, right answer option number B. B is the right answer. Next. In which of the following cases the rarest of rare doctrine war award of death sentence was evolved by the Supreme Court? Ashok Kumar, State of Rajasthan, State of Tamil Nadu, Nalini Bachchan Singh, State of Punjab, Mahesh versus State of MP. अच्छा, पीछे तुम ही बैठे थे। मैं भी सोचूं आग किसने लगा रखी है पीछे गाड़ी में। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए राइट आंसर क्या होगा? जसवंत, शिल्पी एंड सुषमा का आंसर आया सबसे पहले। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect? आराम से पढ़ना है इसको, ठीक है, गलत मत करना। A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place. The charge need not set out the manner in which the theft was effected. Option B. A is accused of disobeying a direction of law with intent to save B from punishment. The charge must set out the disobedience charge and the law infringed. Option C. The charge can be altered even after final arguments but before the judgment is pronounced. Option D. A is accused of cheating B at a given time and place. The charge need not set out the manner in which A cheated B. इनकरेक्ट बताइएगा क्या होगा, ठीक है? आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें और करेक्ट आंसर के साथ जाएं। शानदार, क्या बात है। हिंदी में नहीं है, हिंदी में होते ही नहीं है कभी भी। मैं हिंदी में कभी करवाता ही नहीं हूँ बेटा, मेरे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहते हैं। ईशा, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में नहीं रहते हैं बेटा मेरे क्वेश्चंस ना। हिंदी में सिर्फ बोलता हूँ, करवाता नहीं हूँ हिंदी में क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक कह रहा है ओजस। ओजस कौन सा दे रहे हो, यूपी के लिए जा रहे हो क्या या छत्तीसगढ़ के लिए जा रहे हो? गुड क्वेश्चन, थैंक यू। प्रयागराज, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जसवंत, संजना एंड सुषमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ईशा, हो जाएगा फिर तो। विच ऑफ द केस the Supreme Court discussed the law relating to narco analysis from amongst the following decided cases? Ram Reddy, State of Maharashtra, Stelvi, State of Karnataka, State of Bombay, Kathi Kalu, शारदा वर्सेस धर्मपाल। बताइए। शिल्पी, संजना, अनीशा।
आप कहाँ आ रहे हो? मैं तो कहाँ आ रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं आ रहा यार, मैं तो अपने घर पे ही हूँ। शिल्पी संजना ईशा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Section 18 of the Code of Civil Procedure provides for place of institution of suit in respect of immovable property where the property is situated in the jurisdiction of one court. Option B. Place of institution of suit in respect of immovable property where the property is situated in the jurisdiction of different courts. Option C. Place of institution of suits in respect of immovable property where the local limits of jurisdiction of courts are uncertain. And option D. All of the above. अच्छा क्वेश्चन है। चंडीगढ़ के लिए अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं आया अनअकैडमी की तरफ से, मैंने बात की थी, अभी तक कोई उन्होंने पॉजिटिवली नहीं बताया है कि चंडीगढ़ जाना है नहीं जाना है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। डी बढ़िया लग रहा है, सही बात है ना सर? हाँ, डी को टच करो, कर तो रहे हैं काफी सारे बच्चे। डी ही तो राइट आंसर था। जसवंत रूबी ईशा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अनसर्टन की बात करते हैं। नेक्स्ट रेखांश क्या हुआ? ऑन सर्विस ऑफ समन्स अंडर रूल 2 ऑफ ऑर्डर 36 of CPC, the defendant has to within 10 days of such service enter an appearance and file in court an address for service of notices on him. ऑप्शन बी 37। हाँ 37 ही है, 37 ही है भाई, 36 बोल दिया क्या मैंने? 37 है। फाइल रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 days ऑफ सच सर्विस, फाइल लीव टू डिफेंड विद इन 10 days ऑफ सच सर्विस। मैंने 36 बोल दिया था क्या? क्या बता अंकिता, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। एक्सीडेंटल स्लीप एंड ओमिशंस के रिगार्डिंग करेक्शन किया जाता है सीपीसी में, अलाउड है, हो सकता है ना? संजना गौरांग संगम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, a judgment debtor is arrested in execution of a money decree. Will he be discharged from the debt under the concerned money decree on completion of the period of detention? Option A, no. Even on release after undergoing the period of detention, he will still be liable for payment under the money decree in view of section 58 CPC. Option B, yes, he will be discharged from the debt under the concerned money decree. Option C, yes, he will be discharged from the debt if the money decree is less than rupees 1 lakh. Option D, yes, he will be discharged from the debt if the decree pertains to recovery of law. गुड इवनिंग जितेश, गुड इवनिंग। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है? चलिए बताइए राइट आंसर, पोल आपकी स्क्रीन के ऊपर। शिल्पी, अंकिता एंड सुषमा, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल क्लियर आंसर है। दिमाग लगाना ही नहीं है, नहीं उनको तो लगाना पड़ेगा ना जिन्होंने नहीं पढ़ रखा। शिल्पी, अंकिता, सुषमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। हाँ, कल सुबह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास है, वो ऑलरेडी वहां पे यूट्यूब पे होगी सुबह 7 बजे। Where a compromise was arrived between parties to a suit by playing fraud, misrepresentation, and mistake, and a decree was passed with the consent of the parties, then the effective party may select which one of the following alternatives for setting aside such decree, namely the recourse through appeal, through revision, through review, through second suit। बताइए। इसमें इधर उधर बिछड़ गए हैं बेचारे, लेकिन कुछ बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। कॉम्प्रोमाइज डिक्री जहां फ्रॉड किया जाए। अन्नू, आकाश, वेल डन, काव्या, बहुत अच्छे, तुम लोगों ने बहुत सही किया। आज ही पढ़ा था कह रहे सर आज ही पढ़ा था और ये क्वेश्चन आ गया है, मजा आ गया ये करके, क्या बात है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रमनदीप, आदिल, हरलिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
A suit for compensation for wrong done to the person or to movable property where the wrong was done within the local jurisdiction of one court and the defendant resides within the local limits of another court. Option A. Suit can be instituted in the court within whose local jurisdiction the wrong has been committed. Can be instituted in the court within whose local jurisdiction the defendant resides. Either A or B at the opinion of the plaintiff. Can be instituted anywhere in India. इंडिया के किसी कोने में आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो. इज इट पॉसिबल? पोल में आंसर दीजिएगा, कमेंट में मत देना. सर की गलती है, आज का पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन दे दिया. हाँ मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती है. आज का पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को दे दिया. बिल्कुल पॉसिबल है तो फिर एक बार करो क्लिक ऑप्शन डी पे. पॉसिबल को इम्पॉसिबल बना दिया जाएगा. क्लास में कितने बच्चे हैं? रूबी, शिल्पी, कनिका. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट 307 आईपीसी 307 क्या कहती है? हर किसी पे लगती रहती है 307 ऑफ आईपीसी. Which one of the following statement is incorrect regarding the compromise under Order 23, Rule 3 of the CPC? Option A. Must be in writing and signed by the party. Must be in writing and need to be lawful agreement. It is required that subject matter of compromise is the same as the subject matter of the suit. A compromise which is avoidable under the Indian Contract Act shall also avoidable within the meaning of this rule. Specific rule पूछा है मैंने, तो बेरक से आपका आंसर हो जाएगा सही. बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका. आपके मॉक में सारे बेरक रिवाइज हो जाता है. चलो भगवान करे यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए तुम्हारे एग्जाम में और तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए, मजा तो तब आएगा ना. चलिए संगीता, अक्षित, रमनदीप. राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट. Which of the following orders is not appealable under the Code of Civil Procedure? An order under Section 95, an order under Order 40, Rule 1, an order under 11, Rule 21, an order under Section 24. बताइए, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे. अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है. सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए बताइए सर, पंजाब एडीए फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है? कोई आइडिया नहीं है भाई रिजल्ट का. किसका बच्चा बुला रहा है भाई? मुझे नहीं पता कहाँ बुला रहा है. देखो तुम्हारे पीछे से आवाज आ रही होगी शायद, संभाल लो भाई. गुड इवनिंग दीपा, गुड इवनिंग श्राविका, श्रुति, कनिका. राइट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट. Where a suit plaintiff seeking relief of possession of an immovable property is rejected under Order 7, Rule 11 of CPC, whether filing of a fresh suit is barred. No, filing of a suit is not barred provided the fresh suit is filed within the period of limitation. Option B. No, filing of fresh suit is not barred provided where notice under Section 6 of the Specific Relief Act is served before filing of the fresh suit. Option C. No, filing of fresh suit is not barred only if the earlier suit was filed before commencement of Civil Procedure Code Amendment Act 2020. Filing of a fresh suit is barred if the earlier suit plaintiff was rejected by the High Court and confirmed by the Supreme Court and not by the District Court. क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं. रेलेवेंट ऑर्डर रूल पढ़ा है तो ठीक हो जाएगा. अंकिता, हेमंत, संगीता, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे. क्या बात है ओजस, बहुत जोर से डांटते हो तुम बच्चे को. चलिए नेक्स्ट. Order under 7 Rule 11 of CPC, the plaintiff shall not be rejected where it discloses cause of action, where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law, where the plaintiff fails to comply with the provision of Rule 9, where it is not filed in duplicate. क्वेश्चन देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है. कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन तुम दिन प्रतिदिन बहुत चालाक होते जा रहे हो.
सस्ते नहीं हो, है ना? चलिए, गुड। उल्टा लिख के हमारी फिरकी लेना चाहते हो? वेरी चालाक ब्रो। चलिए, गुड पुनीत, जसवंत, संजना एंड उमंग। काफी बच्चों का गलत हुआ है, 55% का ही ठीक हुआ है। The object of Indian Evidence Act, as set out in the preamble, is to define and amend the law of evidence, to consolidate, define, and amend the law of evidence, to highlight, define, consolidate the law of evidence, to highlight, consolidate, define, and amend the law of evidence. जो सबसे बड़ा वही सबसे ठीक। अमन आज लेट हो गया भाई। अमन, अमन आज तो लेट हो गए तुम। नहीं यार, हिंदी में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। प्रदीप, प्रादीप, अगर पॉसिबल होता तो मैं हिंदी में जरूर लिया था, पॉसिबल नहीं है। ओके अमन। जशवंत, शिल्पी, संजना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। सी is employed as cashier by a firm to receive money at its sale counter. It is his duty to make entries in the ledger showing the amounts received by him. He is prosecuted on the charge of criminal breach of trust in respect of rupees 90,000 on the basis of evidence showing he made an entry showing that he had received rupees 10,000 only, whereas he had actually received rupees 1 lakh. She has taken the plea that the wrong entry was accidental and unintentional. The fact that other entries made in the same ledger are false, each showing receipt of less amount by C, is relevant as it has a bearing on the question of intention, not relevant as the other entries are not basis of charge, not relevant as the evidence is extraneous, option D, not relevant as other entries are not in issue. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जितना अच्छा क्वेश्चन है उतना अच्छा आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन में। बहुत ही बढ़िया यार, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर किया तुम लोगों ने, सीरियसली। इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना छोटा सा आंसर, ऐसा ही होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे ऑप्शन आते रहते हैं। एविडेंस में परफेक्ट आंसर, गुड। गौरांग, अंकिता, संजना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। Facts not otherwise relevant are relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. Which of the following sections of the Indian Evidence Act contains the aforesaid principle of law? 9, 10, 11, 12। आपसे पढ़ा है, कैसे गलत हो सकता है? ये भी ठीक है, गलत होना भी नहीं चाहिए, है ना? रेखांश, रेखांश भी बोल रहा है आज तो। प्ली ऑफ एलिबी है सर। हो गया एविडेंस कंप्लीट रेखांश? चलिए, करण भी आया भाई, करण की क्लास में करण का स्वागत है। जसवंत, सुषमा एंड गौरांग। अर्जुन कहाँ रह गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। The conduct to be relevant under Section 8 of the Indian Evidence Act must be previous, subsequent, maybe either previous, none of the above. इतना इजी क्वेश्चन है, 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए सबका, 100 आउट ऑफ 100। सर मेरा आईपीसी एविडेंस लिमिटेशन कंप्लीट हो गया, अब कल से सीआरपीसी शुरू करूंगा। मजा आ गए, मजे आ गए, क्या बात है, मजे आ गए, मजे आने चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस रहा आईपीसी एविडेंस और लिमिटेशन बढ़ के? और अब एविडेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्या बात कर रहा है रेखांश, सीरियसली बहुत बढ़िया। जसवंत, रूबी, गौरांग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट। Which of the following means a fact to be proved? Quid probandum, modus probandi, both A and B, none of the above. Priyansh, Ravika and Priya.
डेप्थ में भी आता, चलो बढ़िया, ये काम बढ़िया हो गया निखिल, अच्छे से समझ में आ गई चीजें। प्रियांश राविका प्रिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct in relation to documentary evidence? Not correct पूछे, where a document is executed in several parts, each part is primary evidence. Option B. A counterpart is primary evidence against a person who has not signed it. Option C. Oral accounts of the contents of document is secondary evidence. A document must be proved by its primary evidence except where a party entitled to give secondary evidence. दोबारा पढ़ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस एक वर्ड का खेल है, तुमने पकड़ लिया तो ठीक हो जाएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अनन्या, क्या बात है, बहुत दिनों बाद नजर आया तुम भी क्लास में। कमेंट मत करना जब तक पोल खत्म ना आ जाए, वो वाला वर्ड जो तुमने पकड़ लिया है। कर दिया सही, बहुत बढ़िया, सही है भाई। बस सर लाइव क्लासेस लेने की आदत नहीं बन पा रही है, यही प्रॉब्लम है एक अभी भी। कोई बात नहीं यार सर, क्वेश्चन देखकर आपकी क्लास ही याद आ जाती है, आपने ये बताया था। चलो, बेरक में से अंडरलाइन करवाया होगा ना ऐसे, ये यहाँ पे साइन होना जरूरी है। सोनल रूबी उमंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। A is tried for the murder of B. The fact that marks on the ground produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts. It is an illustration of facts forming part of same transaction, facts necessary to explain and induce relevant facts, facts showing existence of state of mind or of body or of bodily feeling, facts as the occasion, cause or effect of fact in issue. बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हमारे यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है अभी? आज तो कम है, 2 दिन से तो कम हो गई है। पहले तो मतलब 6 डिग्री सेल्सियस, कभी 2 पे भी चला गया था, 7 नॉर्मल 7-8 रहता था, लेकिन आज 15 डिग्री सेल्सियस है। आज तो ठीक है टेम्परेचर, ज्यादा ठंड नहीं है। 2 दिन से ठीक है मौसम, धूप भी निकल रही है, अच्छा हो रखा है। तो स्नोफॉल हुआ था हल्का सा। गौरांग सरावी का उमंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नहीं हो रहा है, बंद हो गया, वो कभी कभार होता है बस। ए इज एक्यूज्ड of B's murder, which of the following will be a relevant fact? A is going to field with a club. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A saying shortly before the incident that he will take revenge of his father's death. A is fleeing before the police arrived at village. All of the above. भाई अब तो ऐसा हो रहा है, जहां जहां से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है ना, वहां वहां ठंड कम होती जा रही है। उन्होंने हाफ टी शर्ट पहन के ऐसा दिखा दिया कि ठंड है ही नहीं। अब हरियाणा से गुजरे तो हरियाणा में ठंड कम होगी, अब वो पंजाब में से गुजर रहे हैं, पंजाब से जैसे निकल जाएंगे पंजाब में ठंड कम हो जाएगी, तुम देख लेना। तो बड़ा मतलब ठीक है। हाँ, तभी आज पंजाब में, अब जहां जहां से जा रहे हैं ना पंजाब में, वहां वहां धूप निकलती जाएगी, वहां मौसम अच्छा हो जाएगा। संगीता सुषमा संजना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, fact in issue is defined under the Indian Evidence Act that includes any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied or in any suit proceeding necessarily follows. In a case where A is accused of murder, which one of the following fact is not a fact in issue? That A caused the murder, that A intentionally caused the murder, that A was too poor, that A was incapable of knowing the nature of his act due to unsoundness of mind. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। इसी के वैसे ज्यादा कोई टेक्निकल नहीं है। आएंगे आएंगे सुमन, वहां पे भी आएंगे, हल्का सा कट मारेंगे वहां से भी, टेंशन मत लो, सारी जगह पहुंचेंगे।
जसवंत सराविका सोनल। 26 जनवरी को पूरा भारत सर्दी मुक्त हो जाएगा। वैसे ठंड तो है नहीं, साउथ में तो ठंड है नहीं, अभी भी नहीं है साउथ में ठंड। नॉर्थ एरिया में थोड़ी ठंड होती है बस, बाकी इतनी है नहीं कहीं। Under which condition a court may take into consideration the confession of one accused against himself and another? If they are tried jointly for the same offense, if they are tried jointly for different offenses, if they are tried for the same offense but not jointly, if they are tried for different offenses and not jointly. बहुत easy question है, 100% आना चाहिए, 100% ले आओ। अच्छा, आज एक दो क्वेश्चन मैंने पंजाब वालों के लिए भी डाले हैं, यूपी वाले अटेम्प्ट करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। वाओ, 99 97 पे आके रुक गई गाड़ी, 100% वाला क्वेश्चन था ये। नीतू, अमन, गुड। हर बार आता तो ये एग्जाम में पक्का आएगा रंजीत, तैयारी रखना। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आता है, मतलब ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूँ, तुम भूल मत जाना मुझे एग्जाम में। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी, इंक्वायरी में बी कंडक्टेड बाय आईओ, पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जसवंत, ईशान, गौरांग का सबसे पहले आंसर आया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2G घोटाला, अनु 2G घोटाला। As per the proviso to section 372, the victim cannot prefer an appeal against acquittal of accused, inadequacy of sentence, inadequacy of compensation, conviction for a lesser offense. बताओ बताओ तो जाने। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए यार? आज क्वेश्चन काउंट करने वाला हमारा बंदा क्लास में लेट आया, आप कैसे बताएं कितने क्वेश्चन हो गए हैं? किसी ने काउंट किया तो बता दो भाई, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? हो तो गए हैं, काफी क्वेश्चन हो गए, 26 हो गए हैं। अब मान के चलो 34 35 और रहते हैं। अच्छा, क्या बात है, तुम तो पॉपुलर हो गए ओजस। सुषमा, एकता, प्रिया, देख लो ओजस की पॉपुलैरिटी देख रहे हो। As per the provisions of order number 21 rule 26, the execution of decree may be stayed by the court which passed the decree, appellate court, both A and B, only B not A। बहुत बढ़िया ओजस, ये तो मतलब मजे हो गए तुम्हें तो, हैं? फेमस हो गया ओजस। कह रहा है कल कोर्ट में एक बंदा मिला, मुझे बोलता आप वही ओजस हो ना, करण सर की क्लास वाले। क्या बात है। लो भाई, राजस्थान में एक वकील साहब है जिनका नाम है ओजस, वो दिन प्रतिदिन बहुत फेमस होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, गौरांग, श्राविका एंड द्राक्षा का आया सबसे पहले आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नहीं, 100 नहीं, मैंने कहा था 50 से ज्यादा है, 100 से कम है क्वेश्चन, 100 नहीं है। नेक्स्ट, for the purpose of section 13 subsection 2 clause 3 of the Hindu Marriage Act, the period of non resumption of cohabitation should be minimum 6 months, 1 year, 2 year, 3 years। जसवंत श्राविका। चलिए, राइट आंसर क्या होगा? जसवंत, श्राविका एंड संजना का सबसे पहले आंसर आया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, the limitation period in respect of any application for which no period of limitation provided elsewhere in the limitation act, 3 year, 1 year, 60 days, 30 days। और जैसे राजस्थान की वैकेंसी कब नोटिफाई करवा रहे हो? आरजेएस के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। हाँ, निकलता हूँ भाई, बिल्कुल। वीडियो स्टेटस देख लिया करो, मेरे स्टेटस देखना। अगस्त में एग्जाम, नवंबर में करवाओगे?
Shilpi, Sushma and Sravika, right answer option number A. Next. According to the provisions of Sale of Goods Act 1930, the court may award interest at the rate of 6%, at the rate of 12%, at such rate as it thinks fit, double the rate of prevailing bank rate. मुझसे पहले आपको पता पड़ेगा, आपकी बड़ी पहचान है। अच्छा, अभी तुम्हारे वहां पे रजिस्ट्रार जनरल कौन है तुम्हारे हाई कोर्ट के? तो क्लास के टाइम पे तो मैं स्टूडियो में रहूंगा ना, क्लास के टाइम पे मैं थोड़ी कहीं बैठ के क्लास ले रहा हूँ पार्क में या कहीं घूमते हुए क्लास लूंगा। क्लास के टाइम पे तो भाई ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का है, सीपीसी का क्वेश्चन नहीं था। रूबी, रमनदीप, संजना, एज at the rate as it thinks fit. Next. Section 3B of the Specific Relief Act 1963 enunciates that no provision of SRA shall affect the operation of Indian Registration Act, Indian Contract Act, Limitation Act, all of the above. इसीलिए पूछ रहा हूँ, जो नए बने, मुझे भी उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तभी मैंने तुमसे पूछा कि अब जो आपके हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल है वो कौन है। राइट सर, अमन, क्या बात है। सुषमा, संजना एंड कनिका, वेल डन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने गलत क्यों किया यार, बेसिक क्वेश्चन था ये तो। इज द राइट आंसर। Article 24 of the Indian Constitution imposes bar upon the children from being employed to work in factory or mine or any other hazardous employment where the age of children is below 12, 14, 16, 18. मुझे लगता है सर एग्जाम की डेट डिसाइड कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल। नोटिफिकेशन भी वही निकालते हैं कितनी वैकेंसी है, जो आपके हाई कोर्ट के कंसर्न रजिस्ट्रार जनरल होते हैं वो करते हैं ये सारे काम। हाँ, उनको तो मुझे पता है। ट्रांसफर तुम्हें किसकी? विवेक भारती शर्मा है। हाँ, विवेक भारती शर्मा। कमीशन नहीं करता है। Registrar General with the consultation of the Commission. Jaswant Sonal, Isha, right answer option number B. Which of the following provision of Registration Act 1908 deals with the term endorsement? 24, 25, 26, 27. ये पंजाब वालों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। पंजाब वालों दिखा दो कितना दम है तुम्हारे अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके। क्या बात है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में भी है रजिस्ट्रेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ वाले भी दिखा दो फिर। दिखा दिया सर। राज, सोनल, संजना दिखा दिया, क्या बात है। 25, right answer option number B. Next. The freedom to reside and settle in any part of territory of India is subject to interest of general public, protection of interest of scheduled caste, public order, all of the above. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट वाले ऑप्शन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। देख रहे हो कैसे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं ऑल ऑफ द अबव को देख के। मेरा सही हुआ, साई कह रही है मेरा सही हुआ, खुश हो जाती है। मनिंदर जीत, आपका भी ठीक है। शिल्पी, साई, हरलिन, आई थिंक अब तो ऑलमोस्ट पंजाब की तो प्रिपरेशन हुई की होगी आप लोगों की, है ना? सारा सब कुछ रिवाइज करके बैठे हो बिल्कुल। In which recent judgment it was held that tax administration is a complex subject. While imposing tax, the government has to strike a balance between collection of revenue and business-friendly approach. State of Kerala, Corin Abraham, Steel Authority, Collector of Custom, Union of India, आजादी बचाओ आंदोलन, none of the above. ये आजादी बचाओ आंदोलन तो पता नहीं है कि नहीं इसका राइट आंसर। सुषमा, पर्यांत, संगीता, गुड। अरे कोई प्लान ही नहीं बन पाता यार, काम से फुर्सत नहीं मिलती। जिस दिन काम से फुर्सत होती, जिस दिन क्लास नहीं होती, उस दिन घर वाले काम बता देते हैं। तो बस ऐसे ही है, घर वाले काम नहीं बताते उस दिन अपने खुद के काम फंस जाते हैं, कुछ ना कुछ। जीवन ऐसे ही चले जा रहा है बस। वो कहते हैं ना, गंगा बहती जा रही है और हम भी उसके साथ बहते जा रहे हैं बस। सुषमा, प्रियांक, संगीता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जहां का जो बनता है प्लान वहां चल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट।
While a proclamation of emergency in operation, the state government cannot legislate, can legislate only on subjects in the concurrent list, can legislate on the subject in the state list is suspended. लेकिन ये रेखांश की नाराजगी चल रही है मुझसे थोड़ी सी, इसकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी मुझे इससे मिलके ना। ओजस भाई सर गोली देते हैं प्लान के नाम पर। सर की गोलियों की दुकान है यार, है ना। मेरी जो है मेरी दवाइयों की दुकान है, मेडिकल शॉप है मेरी, मैं दवाइयां देता हूँ, गोलियां देता हूँ। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, क्यों गलत कर दिया तुम लोगों ने? शिल्पी अमन एंड एकता, गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a person shall not be qualified for appointment as a judge of high court unless he is citizen of India and has held a judicial office in the territory of India for at least 10 years, has been an advocate of high court for 10 years. देखो यहाँ पे पूछा है not been qualified, has been distinguished jurist, has either held a judicial office for 10 years or has been an advocate of high court for 10 years. Not qualified, not essential. Dolo 650 mg. Not, a person shall not be qualified. क्या हो गया? अरे क्वालिफिकेशन तो पूछा है, सी तो सुप्रीम कोर्ट के लिए, ये मैंने पहले भी तो करवाया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हाँ, तो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, अच्छा एक सेकेंड, बेरेट निकालो, बेरेट निकालो। सही है, मुझे पता है सही है, लेकिन बच्चों को भी तो निकालो बेरेट। अरे पूरा तो पढ़ो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूं मैं तो, क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूं। बेरेट से ना पढ़ लेना, ठीक है, बेरेट से पढ़ लेना। डी इज करेक्ट, क्योंकि मैंने पूछा है, ठीक है, ये भी क्वालिफिकेशन है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। नेक्स्ट, which is not correct statement, the Supreme Court is a watchdog of citizens' liberty. It interprets the constitution, it protects the directive principle of state policy, it settles electoral disputes of the president and vice president of India. इस क्वेश्चन को ना एक बार ये कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को आराम से बेरक से मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या क्वेश्चन था और आप लोगों ने क्या आंसर किया है, ठीक है। एक बार पूरा समअप करते हैं, फिर उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि जिन बच्चों को पता है वो चले जाएंगे, जिनको नहीं पता वो बैठ के डिस्कस करेंगे। हाँ नेहा, लिखा था, कोई बात नहीं, एक बार इसको समअप कर ले, फिर उस क्वेश्चन पे आऊंगा, रेलेवेंट जो आपका आर्टिकल है उसमें जाके हम डिस्कस करेंगे। श्राविका संजना एकता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक बार इसका आंसर करना आप लोग। चलिए, श्राविका गौरांग हिना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, ईदर ऑफ द टू हाउसेस, नन ऑफ द अबव। मनी बिल कहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा?
यशवंत राज सुषमा, गुड। पोल आ गया भाई, पोल आ गया, पोल आ गया है। जहां ज्यादा मेंबर होंगे वहां पे। चलिए, जसवंत राज सुषमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, an ordinance of the governor has the same force as the law made by the state legislature until approval by the legislature, is more extensive than the law made by the state legislature, is more narrower than the law made by the state legislature, none of the above. Sushma Raj and Sravika. 1, 2, 3. Sir, how many questions left? I am hungry. अरे, लोग तो क्वेश्चंस के लिए भूखे होते हैं, तुम खाने के लिए भूखी हो, ये क्या बात हुई है? लोग तो क्वेश्चंस के लिए भूखे बैठे रहते हैं, तुम खाने के लिए कह रही हो कि सर आई एम हंग्री, क्वेश्चंस कितने रह गए। सुषमा राज श्राविका, खा लेना, कोई बात नहीं, खाना मंगवा लो, मम्मी को कह दो यहीं पे दे जाएंगे, बैठे बैठे खाते रहना, करते रहना। तुमने बड़े तीर चलाने हैं, ऐसे टिकी तो करना है। गिव करेक्ट रिस्पॉन्स टू मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोक सभा। The speaker is appointed by the president. Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. Rajya Sabha has no power to pass a vote of non-confidence on the Council of Ministers. रही, खाना ही तो खाना है, मंगवा लो एक प्लेट में, मम्मी को बोल दो, मम्मी दे जाएगी। जोमेटो से मंगवा, जोमेटो से मंगवा लो, मैं खाते रहो, मैं थोड़ा देख रहा हूँ तुम्हें, तुम क्या मंगवा रहे हो, क्या खा रहे हो। मेरे मॉक टेस्ट कभी खाने के आड़े नहीं आते, खाना खाओ, ये कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे खाना खाते हुए। अंकिता, क्या क्वेश्चन था आपका? ऊपर चला गया, दोबारा करो एक बार। जसवंत साई श्राविका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द कैग इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। भाई जिसको भूख लग रही है वो खाना मंगा लो अपना और खा लो, क्यों भूखे मर रहे हो तुम लोग? बताइए। अंकिता, थोड़ा सा मैं कहूंगा एक्स्ट्रा भी पढ़ लो, ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई करते समय पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, भूख भाग पे नहीं होना चाहिए। बच्चों के नखरे बड़े हैं आजकल। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संजना रूबी श्राविका। नेक्स्ट, who among the following holds his or her office at the pleasure of the president? Chairman of UPSC, Attorney General of India, Speaker of Lok Sabha, CAC। अरे कोई बात नहीं, आंसर सही आया है। एक सेकेंड, क्या कर दिया ये उस दिन? ठीक, एक सेकेंड, रुको 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 रुको। हाँ, ये इसमें ना ऑड इवन वाला है, ये उस दिन करेक्शन उसमें की तो थी, हुई नहीं गया इसमें। एक सेकेंड रुको, नॉट है, नॉट। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट होल्ड हिज और हर ऑफिस, लीजिए एक सेकेंड। अनु ने पहले ही पकड़ लिया था इस क्वेश्चन को अपनी बार। चलिए, शिल्पी, आकाश, अंकित, आप भी गलत कर रहे हो, पढ़ना पड़ेगा। क्या हो गया? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, प्रेसिडेंट के ब्लेजर पे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग हो गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मैंने क्या कर दिया? अरे दोबारा रीपोल करो, मैंने बी कर दिया था क्या? लो, दोबारा रीपोल करो, दोबारा रीपोल। एक क्वेश्चन पे इतनी बार रीपोल हो गया ना, एक छोटी सी गलती हुई जैसे।
अब ठीक है। अरे ये हु अमंग द फॉलोइंग नोट, यहाँ पे नोट आएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, नोट आएगा नोट। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट होल्ड्स हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, टाइपिंग में गड़बड़ होगी। आंसर ठीक है, प्रियांत, अक्षित, अंकिता। ठीक है, क्या कह रहे हो? नॉट ही तो है सर, कैग नहीं करता, गलत है। अरे ऑफिस ऑफिस ऑफिस, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ही है ना इम्पीचमेंट, उसका कोई टेन्योर तो नहीं है ना अभिषेक, टेन्योर नहीं है ना। नेक्स्ट, फ्रॉम विच कंट्री द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन डिराइव्ड? आयरलैंड, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस। क्या हो गया? एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तुम मतलब जमी को आसमां, आसमां को जमीन बना दे, तो सच्ची कह रहा हूं, है ना। ये गलती हो जाती है जब, माफ कर दिया करो यार। भाई देखो, बुक में यही लिखा हुआ है तो इसी के साथ जाओ, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, रशिया यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में, तो यूएसआर एसएसआर इज द बेस्ट ऑप्शन। संजना, प्रियांत एंड ईशा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा विल्स, अब यूएसएसआर नहीं है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आज लेके आए हो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने साल पहले लेके आए थे? हाँ, कब लेके आए हो फंडामेंटल? आज लेके आए हो, जब यूएसएसआर था तब लेके आए थे ना। बस फिर चुपचाप यूएसएसआर कर लो, ठीक है। After the judgment of Supreme Court in Minerva Mills versus Union of India, the provision of Article 31C means all directive principle can supersede the fundamental rights. No directive principle can supersede the fundamental rights. Directive principle contained in Article 39 Clause A supersedes the fundamental rights. Directive principle contained in Article 39 Clause B and Clause C supersede fundamental rights. सर फिर नेक्स्ट टाइम रशिया और यूएसएसआर दोनों डाल, क्या हो गया इसमें? ठीक तो है, क्या कर रहे हो तुम लोग? एक सेकेंड, 39B एंड 39C रॉन्ग पोल हो गया है। क्लोज बी एंड सी बिल्कुल गलत है, सही बात कह रहे हो आप लोग, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, रुको 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 रुको। हाँ, ऑल नहीं होंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे, बेरेक्ट में ही सेल्फ मेंशन है। रुको, रिपोल आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज हो क्या रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, तकड़ा पेज फंस गया। चलिए, राज, उमंग एंड रूबी। सर आज किसी को टॉप नहीं कर रहे थे, कोई तो टॉप करेगा। वैसे तो मोहित करता है, आज मोहित है या नहीं है क्लास में पता नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Supreme Court may refuse to entertain a petition presented to it under Article 32 of the Constitution for the enforcement of fundamental rights on ground that the petition involves the determination of disputed question of fact, the petitioner has failed to furnish security as required by rule made by Supreme Court under Article 145 of the Constitution, the petitioner should have first approached the High Court under Article 226 of the Constitution. The petitioner has already approached the High Court under Article 226 of the Constitution and his petition has been rejected by the High Court on merits. कितने क्वेश्चन हो गए? आई थिंक कितने 50 के आसपास हो गए क्या क्वेश्चन हमारे? 4 या 5 क्वेश्चन हो रहे थे शायद। कितने क्वेश्चन हो गए, किसने काउंट किए हैं? 48 हो गए ना, 4 या 5 रहते हैं, 55 या 56 के आसपास क्वेश्चन होंगे। शिल्पी, प्रिया एंड सोनल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, in which recent case the meaning and rationale of preventive detention is being discussed in constitution or statute? State of Maharashtra, Bhalu Rao,
राजेंद्र यूनियन ऑफ इंडिया, नरेश यूनियन ऑफ इंडिया, AK रॉय यूनियन ऑफ इंडिया। डिस्कस हो सकता है, डिस्कशन की बात नहीं है, इंट्रोडक्शन की बात है। केस पता नहीं है, ए लगा दो। राज, राविका एंड प्रियांत, राइट आंसर जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर आपके पढ़ने के लिए एक ऑर्डर है 2 पेज का, कब भेजूं? जब आपको पढ़ने का टाइम मिले। The right given by Article 32 cannot be abrogated by act of legislation, cannot be abrogated unless the constitution itself is amended, can be altered by state legislation, none of the above। मैं बताऊं कब भेजना, कब मैं फ्री हूँ? आप मुझे भेजना 15 जैन को, नहीं 22 के बाद नहीं, 15 जनवरी को, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए बेंगलोर जा रहा हूँ, तो शायद आप लोगों की क्लास ना हो। ठीक है, स्पेशल क्लास भी शायद ना हो। 15, 16, 17 3 दिन के लिए मुझे बेंगलोर जाना पड़ रहा है अन अकेडमी के ऑफिस में। ठीक है, मे भी, लेकिन सुबह 7 बजे वाली क्लास जो है आपकी, मैं कोशिश करूंगा कि 7 बजे वाली क्लास हो। ये क्लास शायद नहीं हो पाएगी। राज, राविका, सुषमा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, व्लॉग बना लेना सर वहां की। अच्छा, on which one of the following freedoms can reasonable restrictions be imposed on the ground of security of the state? Speech, expression, peaceful assembly, association और union movement। नहीं भाई, कोई हॉलीडे पे नहीं जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, मैं आप लोगों को अन अकेडमी ऑफिस में खड़ा नजर आऊंगा। ठीक है, तुम्हारा 21 को मैंने महामोक उसमें कर रखा है यूट्यूब पे, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हारा हो जाएगा। कोशिश ये है कि यूट्यूब की क्लासेस आपकी चलती रहें। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब की लंबी क्लास नहीं होती, मे बी टाइम निकल जाए, बट इस क्लास के लिए शायद टाइम निकले ना निकले। काम से जा रहे हो, इनको हॉलीडे लग रहा है। 15 को तो तुम्हारा स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, स्कॉलरशिप टेस्ट है 15 को, वो आप लोग अटेंड कीजिएगा। Under Article 16, the words any employment or office applies to only public employment, private employment, both public and private, none of the above। हॉलीडे नहीं है भाई, हॉलीडे नहीं है। एक सोल्जर और एक एजुकेटर की लाइफ में हॉलीडे नहीं होता है। क्योंकि तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारे मॉक बनाने के लिए सारा टाइम निकल जाता है। चलिए, संजना, एकता, रूबी, इसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को छोड़ के 2 हो रहे हैं। संजना, एकता, रूबी, नेक्स्ट। Article 14 lays down that the state shall not deny to any person equality before law and equal protection of laws. The expression any person means citizen, non-citizen living within the territory of India, citizen of India living anywhere, natural person but not artificial, only natural person। चले बताइए। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद। ठीक है, और वो पंजाब वालों के लिए है स्पेशल क्वेश्चन। आईपीसी के क्वेश्चन नहीं थे आज, आईपीसी के क्वेश्चन नहीं थे। आखिरी क्वेश्चन है इसके बाद पंजाब वालों के लिए। अब वो तो तुम लोग बताओ, हिंदू लॉ से कहां से है? टीपीए भी नहीं था आज। राज, जसवंत, रूबी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, गैस करना चाहोगे लास्ट क्वेश्चन कहां से है? ओनली फॉर पंजाब मैं बोल रहा हूं, तो पंजाब वालों को पता होना चाहिए। चलिए, एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 38 ऑफ द पंजाब कोर्ट्स एक्ट, an appeal from a decree or order of additional district judge exercising original jurisdiction shall lie to DJ, High Court, any court to which appeal lies from the court of additional district judge, either A, B or C। चलिए, पंजाब वालों, यूपी वालों, आप लोग मत ट्राई करना। ठीक है, अच्छा, कल सुबह 7 बजे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मॉक टेस्ट है। जो भी बच्चे पंजाब के लिए अपेयर हो रहे हैं, या सोगा आपके जहां पे भी आता है, सुबह 7 बजे लेट्स क्रैक अन अकेडमी वाला जो चैनल, उस पे। यूपी वालों का भी सही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यूपी वालों, आग लगा दो तुम लोग।
मॉक टेस्ट में, और कहीं मत लगाना। गौरांग सोनल लर्निंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई कोर्ट। सो दिस इज फॉर टुडे सेशन। अब जो आपका मॉक 14th को होना था शाम को, कोशिश करूंगा कि 14th को शाम को लूं मैं आपका मॉक, ठीक है। सीपीसी के लिए प्रिपेयर रहना। कल तो जैसे कल तो नहीं है, कोई भी मॉक नहीं है, कल 13th है, यहाँ पे नहीं होगा मॉक क्योंकि कल लोहड़ी है, शाम को आराम से आग जलाएंगे, बैठेंगे, ठीक है। तो 14th को आपका सीपीसी का होगा, इसके लिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। 15 जनवरी दोपहर को 12 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट है, जरूर आना, ठीक है। और हाउस दी जॉस राइट नाउ। और इसके बाद एक बार जाइएगा मत, वो जो क्वेश्चन था ना हाईकोर्ट वाला, उस क्वेश्चन को निपटाएंगे क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है उस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। सो लाइनें वही है, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हारे हराने के लिए कोशिश नहीं, साजिश करनी पड़े, बस याद रखना। क्लास खत्म, पैसा हजम। चलिए, रिचा ने टॉप किया, परमिंदर 56 क्वेश्चन, वेल डन परमिंदर, अच्छा कर रहे। रितु, अनु, कनिका भी मतलब बहुत बढ़िया कर रही है, काफी दिनों बाद क्लास में आई है बट अच्छा कर रही है। श्रुति, हरजीत, सृष्टि, मीनाक्षी, कैफी, बहुत बढ़िया, गुड। सो आज की जो कट ऑफ है वो है आपकी, हाँ वो भी देखते हैं, ठीक है। कट ऑफ जो है वो आपकी है 40। अगर आपके 40 है तो आपका है ठीक, नहीं है तो ठीक नहीं है। दोबारा से लीडरशिप बोर्ड दिखा रहा हूँ और मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ वो वाला आपका, जो अपना क्वेश्चन था हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला। दिख गया लीडरशिप बोर्ड? अरे कुछ स्पेशल होता है क्या, मतलब जैसे ये लर्निंग करी सर, आपकी पहली हैप्पी लोहरी है शादी के बाद, आपका पहला नया साल है शादी के बाद, क्या कुछ नया एडिशन कुछ हो जाता है क्या? मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं, कि जीवन वैसा ही है, वैसा ही है। पहले अकेले सेलिब्रेट, अब साथ में सेलिब्रेट करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कुछ फर्क। नया साल भी वही है, लोहरी भी वही है, दिवाली भी वही है, होली भी वही है। होली दिवाली चेंज हुई तो बात बने ना, वो तो चेंज होती नहीं है। नहीं भाई, वही फीलिंग है, नया साल है, फीलिंग नहीं क्या होती है, फीलिंग तो वही रहती है। चलिए एक बार आइए, पता नहीं बस मूंगफली गज्जक एक्स्ट्रा लानी पड़ती है, ऐसा कुछ है क्या? क्वेश्चन कहाँ गया आप लोगों का? हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला, हाईकोर्ट वाला क्वेश्चन। एक सेकंड रुक जाओ, आर्टिकल निकालो तुम लोग बेरेक्ट में, तब तक ये लीजिए। नहीं रिवीजन नहीं होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। निकालिए आर्टिकल, मैं यहाँ पे अपलोड करूँ, निकाल रहे हो बेरेक्ट में। भाई हमारी मैडम बहुत समझदार है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन निकाल लीजिए, और इसका जो सब आर्टिकल 2 है वो देखिएगा। अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, निकाल लो, क्या हुआ? आगे समझ में? एग्जाम में ऐसी गलती मत करना। बहुत बढ़िया जितेश, समझदारी बहुत जरूरी है ना? यस, डी इज करेक्ट ना, डी तो मैंने करेक्ट कहा है। पहले ही समझ जाते, तुम लोगों ने आधा घंटा खराब कर दिया। और कौन सा क्वेश्चन था? और कौन सा क्वेश्चन था? हाँ बस ये होता है कि शादी के बाद है ना, थोड़ा सा बिजी हो जाता है इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप मम्माज बॉय हैं तो शादी मत करवाना, बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। प्लेजर वाला, प्लेजर वाला भी निकाल लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन थे हमारे? एक सेकेंड, कहाँ गया प्लेजर वाला? अनलेस ने नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, आप समझ आ गया। हाँ ये तो बेरेक्ट से है यार, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया, बेरेक्ट की लैंग्वेज है, ठीक है, सेम लैंग्वेज है, कट कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा की परियों के लिए भी पैसे मैसेज है, और मॉम मम्माज बॉय के लिए भी मैसेज है। अगर आप मम्माज बॉय हैं या पापा की परी हैं तो शादी मत करवाना, तुम्हारी घर गृहस्थी अच्छी नहीं चलेगी। सर कॉन्स्टिट्यूशन के अप्रोक्स कितने क्वेश्चन थे? ये तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की भी, कि कब शुरू कर रहे हो, क्या शुरू करना है? रुक जाओ एक बार, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन मुझे एक बार याद दिला दो यार, एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन पे करेंगे फिर
तुम्हारी बातें सुनेंगे। कहाँ गया हमारा हमारा क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इसमें ना यहाँ पे नोट है, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट होल्ड हिज हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब चेयरमैन ऑफ यूपीएससी अगर आप देखोगे, बेरेट निकालो, पब्लिक सर्विस कमीशन, सर मेरा कहना ये था कि कैग भी प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होता है, ये आपका कहना था, ठीक है, नहीं होता है। अपॉइंट कौन करता है कैग को? उसके लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको रिमूव करने का ना। लेकिन मेरा कहना ये है अभिषेक कि उसके लिए कोई एक टेन्योर नहीं है, टाइम पीरियड नहीं है, कितने टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट की जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने कहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, एक बार निकालिएगा आर्टिकल नंबर 315 निकालिए एक बार, ठीक है। बेरेक्ट है क्या? बेरेक्ट है तो निकाल लो एक बार, बेरेक्ट में देख लो, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। आर्टिकल 315 देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट। अब यहाँ पे देखेंगे द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर इफ रिक्वेस्टेड ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस 316 देखिए, the chairman and other member of the public service commission shall be appointed in the case of the union by the president, ठीक है। और इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है यहाँ पे मिलेगा आपको, सब रूल 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। 6 ईयर तक होल्ड करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स, 6 साल तक का टाइम पीरियड है इसका, ठीक है। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का तो हो गया। अब आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखेंगे, ठीक है, एजी साहब निकाल लीजिए। निकालो एक बार आर्टिकल नंबर 76 निकालो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए, आर्टिकल नंबर 76 निकालो पेरेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द प्रेसिडेंट में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल तो अपने प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग ही ऑफिस को होल्ड करेगा, ठीक है। यूपीएससी वाला 6 साल के लिए करेगा, लिख लो यहाँ पे फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। यूपीएससी वाला 6 साल के लिए, ये प्रेसिडेंट के लिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा निकाल लो एक बार, स्पीकर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट, हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा, $37.89। The speaker and deputy speaker of the people, house of people, the chairman and deputy chairman of the council of minister। अरे तुम लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर कहोगे सर फिर कंफ्यूजन रह गया है। सैलरीज अनाउंस, सेक्रेटरी वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल। आर्टिकल नंबर 94 देखिए, ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, आर्टिकल नंबर 94 देखिए। हाँ हाँ, रेज हैंड कर सकते हो अभिषेक, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यूपीएससी तो 6 साल तक के लिए। हाँ, फिर अटॉर्नी जनरल आएगा अगर नोट ना लगाए तो। नोट वाले भी 2 आ गए क्योंकि
ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है, इसमें ना ऑप्शन गलत हो गए हैं। एज पर दी डिस्क्रिशनरी ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर का मतलब यही होता है जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक आप ऑफिस होल्ड करेंगे। मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया है। बिल्कुल। यूपीएससी भी जो है वो राष्ट्रपति जी के ऊपर यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस बिहेवियर आफ्टर द, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही ठीक है। देखो यूपीएससी वाले का तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के ऊपर ही जाएगा, अटॉर्नी जनरल भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है ठीक है। डिलीट दिस क्वेश्चन सर, पंजाब वालों को तो वैसे भी आदत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा तो 5 साल के लिए होता है, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, 94 देखिए, आर्टिकल नंबर 94। वो तो नहीं होगा। अब रह गया आपका कैग का, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और देखिए एक बार उसमें तो लिखा हुआ है वो तो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक है। कैग का तो साफ साफ लिखा हुआ है, अपॉइंट भी वही करते हैं राष्ट्रपति जी उनको, और रिमूवल का भी राष्ट्रपति जी के हाथ में ही है। 148 आप देखेंगे तो वहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है 148 में, रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस लाइक इन मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो वही है, प्रेसिडेंट के हाथ में ही है। नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग, उसी प्रकार से ना इम्पीचमेंट होता है तो टाइम पीरियड नहीं है ना अभिषेक, स्पीकर ही इसका राइट आंसर हुआ ना। अगर आप देखो देखो यहां पे टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, यूपीएससी में टाइम पीरियड नहीं है, इसमें टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, कैग में टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, आप समझ में आ। हाँ, अगर बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो कैग जो है, ठीक है, एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड नहीं करता है, ठीक है, कैग जो है एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड नहीं करता है। अगर रिमूव करना चाहो तो ऑन दी सेम ग्राउंड, जिन ग्राउंड्स के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हो आर्टिकल 124 के अंदर, उसी ग्राउंड के ऊपर आप कैग को रिमूव कर सकते हो। नहीं, यूपीएससी में 6 ईयर नहीं है, आर्टिकल 317 में प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा हु अमंग द फॉलोइंग नॉट होल्ड, नॉट कर लीजिए यहाँ पे, नॉट होल्ड हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, एज पर द सिचुएशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ठीक है। अब अभिषेक ठीक है, वो तुम्हारा डाउट था, वो जेन्युइन डाउट था कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्यों होगा, क्योंकि एक टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ है। बाकी आप देखेंगे जैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा इसमें टाइम फ्रेम है, बाकी में नहीं है। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है यार, एक सिंपल सी बात देखो, जो चेयरमैन है यूपीएससी के, ठीक है, इनका कोई टाइम लिमिट नहीं है, इनको कब रिमूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट साहब चाहे जब करवा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल है, राष्ट्रपति जी चाहे जब करवा सकते हैं, ठीक है। कैग है, इसका कोई टेन्योर नहीं दिया, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, ठीक है, जब चाहे इसको रिमूव किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे रिमूव करते हैं उस प्रकार से, तो कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। स्पीकर ऑफ लोकसभा का टाइम पीरियड है, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का टाइम पीरियड है, इसलिए ये अलग से ऑड इवन वाला कंसेप्ट हो गया, इसको बाहर निकालो, ठीक है, ठीक है सर। लीडरशिप हाईकोर्ट वाली दिखाऊं अर्जुन, हाईकोर्ट वाली तो बड़ी क्लियर है, ये हो गया क्लियर सबको, पक्का क्लियर है ये वाला क्वेश्चन सबको, ये हो गया क्लियर, ठीक है। हाईकोर्ट वाला और देख लो, हाईकोर्ट वाला तो कुछ भी नहीं था उसमें, तो सिंपल सा था। नहीं, उसमें 5 साल का टाइम पीरियड होता है ना ओजस, वो तो 5 साल का टाइम पीरियड होता है ना, वो तो अपने आप अपॉइंट करते हैं, ये रहा। नहीं हुआ अभिषेक, कोई बात नहीं अभिषेक, मेरे को है ना, अगर कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज सेंड कर देना विद रेलेवेंट प्रोविजंस, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है।
क्वेश्चन में नोट आएगा हरप्रीत, क्वेश्चन में नोट आएगा। नहीं जूरिस्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है, जूरिस्ट नहीं आएगा। ये वाली और ये वाली एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, ठीक है, तो इसलिए डी इसका आंसर है, ठीक है। जूरिस्ट आपका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आएगा। हटा सकते हैं ओजस, मैं वो देखो यार समझने वाली बात जो है, एज पर दी आप क्वेश्चन समझेंगे और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, सर नोट नहीं आएगा उस क्वेश्चन में एंड आंसर अटॉर्नी जनरल हो तो ठीक लग रहा है मुझे। नहीं अटॉर्नी जनरल कैसे होगा फिर? हाँ तो मैं तो एसेंशियल पूछ रहा हूँ ना, ये देखो, अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ द हाई कोर्ट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, और कौन सी कंडीशन चाहिए आपको? या तो जुडिशियल ऑफिसर हो 10 साल के लिए, या एडवोकेट हो हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, यही तो कंडीशन चाहिए हमें। अर्जुन देखो, आर्टिकल निकालो, बेरेक्ट है क्या? आर्टिकल 217 निकालो, बेरेक्ट में आर्टिकल 217 निकालो और उसका सब रूल 2 पढ़ लो बस। आर्टिकल 217 का सब रूल 2 पढ़ लो। सर वो प्लेजर पे होता है 76, बाकी तीनों प्रेसिडेंट के प्लेजर पे नहीं होते हैं। तुम कह रहे हो कि जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं वो प्लेजर पे हैं, बाकी तीनों प्लेजर पे नहीं होते हैं, लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन में तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट। अच्छा तुम क्लियर कट वर्डिंग्स के साथ जा रहे हो अभिषेक, कि क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सिर्फ एक ही आर्टिकल है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला, जो ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो एज पर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे, राइट? यही है ना अभिषेक? ठीक है, ये रीजनिंग आपकी ठीक है, एज पर दी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि बाकी में इन स्ट्रिक्ट सेंस अगर देखें हम, बाकी किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ कि बाकी सारे भी एज पर दी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे, बिल्कुल सही है। अभी समझा देता हूं मैं क्या ठीक है। देखो आर्टिकल 76 जब आप पढ़ते हो तो आर्टिकल 76 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, वो ऑफिस को होल्ड करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन जब आप स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करते हो, अब ठीक है, अभिषेक ने समझा दिया क्वेश्चन, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था इस क्वेश्चन में, अभिषेक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। कहाँ गया क्वेश्चन? आ जाए बस एक बार। ये क्वेश्चन है, देखो ये बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, नोट नोट कुछ मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, बस एक सिंपल सा है क्वेश्चन, समझो। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था, ठीक है, तुम भी कंफ्यूज हो रहे थे। Who among the following holds his or her office at the pleasure of president? pleasure of president पे ऑफिस कौन होल्ड करता है? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी नहीं करता, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं करता, आपका कैग नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब क्लियर है सबको? ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि इन ए स्ट्रिक्ट सेंस हम देखें बेयर एक्ट में, ठीक है, हाँ बिल्कुल कहा गया है 76 में, इन ए वेरी क्लियर वर्डिंग इट इज मेंशन अंडर सेक्शन आर्टिकल 76 सब आर्टिकल 4 ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजेंट, रेस्ट ऑफ द में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर एंड दिस इज द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम पूछना चाह रहे थे। ठीक है, काफी कंफ्यूजन हो गया था इस क्वेश्चन में, 3-4 बार रीपोल करना पड़ गया था, नोट की वजह से भी कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। चलो लीडरशिप बोर्ड में क्या ही चेंज होगा, क्लियर है, 2 क्वेश्चन पे कंफ्यूजन था, दोनों क्लियर हो गए हमारे, अब एग्जाम में आएंगे तो कोई डाउट नहीं है दोनों क्वेश्चन को लेके। सीपीसी के बाद होगा सृष्टि, 10 बज गए हैं यार, ठीक है, सम अप करते हैं, सुबह 7 बजे मिलेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास में, ठीक है। चलिए अब एक बार सब बता दो हाउस दी जोश ओजस पूछ रहे हैं तो बता दो भाई हाउस दी जोश। चलिए फिर बबाई करते हैं, हाई है, चलो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है, मैं अभी उसका शेयर कर देता हूँ लिंक आप लोगों के साथ, लीजिए। ये रहा लिंक आ रहा है, अभी मैं भेज रहा हूँ, जो सुबह क्लास होगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, उसका लिंक मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट,
ये लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक आ रहा है, हाँ पिन कर रहा हूँ। ये सुबह 7 बजे होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का मॉक टेस्ट, ठीक है, आ गया। इस पे जाके लाइक कर दो वीडियो को और वहां पे नोटिफाई कर दो, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। रिवीजन करते रहे, वैसे ही आगे बढ़ते रहे। हैप्पी लोहड़ी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस, ठीक है। बाकी कल सुबह